We've been talking about belief, right? And then I have this little brochure here. I think we have enough to give out one. कल हम लोगों ने इसके विषय में बात किया, विश्वास, belief, and we have the notes there. Now you see there's some lot of blank there. Purposely, I want you to write down some things over there. Got your pen or something? Should have told you to bring your pen. Now last night we said believe on greater things. Believe on greater things. Can we reduce the volume a little bit? Just reduce it a little bit. Believe on greater things. You can make a note over there at the bottom there or somewhere. Write down believe for greater things. And I gave you the scripture, John chapter 14 verse 12. John chapter 14 verse 12. Believe for greater things. I said that we need to have faith. We need to think about great things. We need to accomplish great things, and it is possible. When we believe in God, these things are possible. Because Jesus said, I'm going away, and when I go away to my Father, you will do greater things than what I have done. So that is the verse of Scripture then. He says there, very, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works that I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. So that is assurance given to us. So just make a note over there, number one, that we can do greater things. We need to plan for greater things. Now today, what we're going to do, we'll look at some more on this, and this is believe for the impossible. Number two, believe for the impossible. Believe for the impossible. I could have written all this down over there, but I purposely did not do it. I want you to write it so it makes you feel part of it. Believe for the impossible. In Genesis 18:14 we read, is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Now, today's thought is that we need to pray in the midst of impossible circumstances. Doubt will be replaced by absolute trust in God's promise to intervene in your need of circumstances. यानी कि जब हम लोग विश्वास करते हैं, वो चीज़ जो अनहोनी है, जो मनुष्य की आंखों में नहीं हो सकता है, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं कि वो होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या कोई चीज़ कठिन है परमेश्वर के लिए. ऑलराइट, जेनेसिस उसमें हम लोग पढ़ते हैं, इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड? क्या कोई भी चीज़ है जो परमेश्वर के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत कड़ा है, वो जो नहीं कर सकता? कोई भी चीज़ ऐसे हम लोग जानते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो कर सकता है. इसीलिए वो कहता है कि हम लोगों को चाहिए, हम लोग प्रार्थना करें कि चाहे जैसे भी कठिनाइयाँ में हम पड़े, चाहे कितना इम्पॉसिबल सिचुएशन में हम लोग आ जाए, हम लोग अपने दुग्धा को हटाकर और वहाँ पर पूरा विश्वास लाए परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर. पूरा विश्वास परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर, जो कहता है क्या मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल है, कोई चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ. इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? कोई भी स्थिति में हम हो, हमारा विश्वास उसको हटा सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. इसके लिए मैं एक उदाहरण का लाना चाहता हूँ बाइबल में से, और फिर हम लोग उसके बाद इसी विश्वास में जाएंगे प्रार्थना करने के लिए. हम लोग जानते हैं कई एक लोग जो बाइबल में हम लोग बहुत कोई ले सकते हैं, लेकिन मैं आज और शुक्रवार के बीच में 4 स्त्री के नाम लूँगा जो बाइबल में है, जिसके द्वारा हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. पहला स्त्री हम लोग जानते हैं सैरा. बाइबल में पुराने नियम में इब्राहिम की पत्नी सैरा. सब इसके विषय में जानते हैं खूब अच्छी तरह से. ये स्त्री जिसको दूतों ने जब इब्राहिम से बताया कि तुम्हारे पत्नी पुत्र जनेगी, वे लोग करीब 99 years old, तो सैरा सोचा कि ये बड़ा तमाशा की बात है. शी लाफ्ड, वो हंसी.
और फिर ऊपर से उसने कहा मैंने नहीं हंसा. So Abraham laughed to herself. She thought, I am worn out and my Lord is old and now will I now have pleasure. ये सारा के विचार था. लेकिन परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया था कि तुम लोग एक पुत्र को जनेगी. यहाँ पर जब दूत आकर बताता है, बात को पक्का करता है, confirming the promise, then Sarah laughed. It can't be possible. Can't be possible. इतना बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति बूढ़ा है, इसमें हो ही नहीं सकता है. और वो इसमें हंसी. Now, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके इस स्थिति पे रहते, आप अगर 89 years old के रहता और किसी ने आपको आकर बताया कि तुम गर्भवती हो गई, तुम्हारा पति जो है वो 99 years old है, पति तुम्हारा 99 years old है, तुम 89 years old हो और तुम्हें आकर बताए कि तुम एक पुत्र जनोगी, तुम गर्भवती होगी, तो हमें गारंटी करता हूं कि आप भी हंसोगे. है ही नहीं है? नामुमकिन है, नहीं हो सकता है. उन दिनों में आज भी नहीं हो सकता है. सारा हंसी. कैसे हो सकता है? इसके साथ साथ शायद दूत अगर आकर बताता तो हम लोग दूत से झूठ भी बोल देता. नहीं, हम नहीं हंसा. सारा बताया, हम नहीं हंसा. आई डिड नॉट लाफ. ये एक बहुत ही अविश्वास करने का जो घटना था. रिडिकुलस इंग्लिश में कहते हैं, रिडिकुलस साउंडिंग प्रॉमिस. 89 years old, 99 years old, and the promise comes, you will bear a child. लेकिन हम लोग जानते हैं कहानी, ये हुआ जो मनुष्य के साथ नहीं हो सकता था. The things that were impossible with men, God intervened and he says, I can do anything. There is nothing hard for me. And the 89-year-old and the 99-year-old were able to produce a child. That was the promised child. ये चीज बहुत जरूरत हम लोग जानने के लिए, चाहे कैसे भी कठिनाइयां हो, अगर उसमें परमेश्वर है, हमने अपने आंख को परमेश्वर पर रखे, we keep our eyes upon the Lord and believe it will happen because there is nothing too hard for God. Sarah's case is a very clear case. Humanly it was not possible. मनुष्य की आंखों में शारीरिक रूप से यह नहीं हो सकता था, लेकिन ये हुआ. तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं. हम लोग देखते हैं अपने कलीसिया की तरफ, असेंबली. बहुत कुछ है जो शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई बताता है कि हम लोग एक बिल्डिंग बनाएगा करीब $1 million के, तो पागलपन, तुम लोग क्या बात करता है. लोग मुझसे कहते हैं कैसे तुम इन दिनों में, जबकि महंगाई इतना बड़ा हो गया, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, the cost of living is gone up, the economic status is gone up, everything is running high price. How are you building that price? I said, well, with men it is impossible, but with God all things are possible. जैसे मैं बताया कि अगर हम लोग मनुष्य के आंखों से देखता है तो कभी हम लोग हाथ लपेट के बैठ जाता है कि oh no, can't do it. But there is nothing too hard for God. So हम लोग जो कलीसिया है, हम लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये महान आशीष के लिए कि हमारा कलीसिया जो है, जो पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, 6 daughter churches, कितने लोग बाइबल कॉलेज से होकर गए, शिक्षा को प्राप्त किए, कितने लोग पादरी के काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रहा है. ये किंडरगार्टन को देखो, हम लोग यहाँ किंडरगार्टन है, आज हम लोग यहाँ पर कहते हैं. ये सब अगर कोई देखता हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, they look at our financial position all these years and the number of people we have, it's not possible. But God, praise the Lord, there is nothing too hard for the Lord. इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर है, because of what God has done. तो आज हम लोग कृतज्ञ हैं परमेश्वर को, हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा कलीसिया हमारा है जिसमें हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और हम लोग
ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा सुसमाचार प्रचार होगा, ग्रेटेस्ट इवेंजलिज्म वर्क। और मैं फिर से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये काम में हमें पीछे नहीं हटना होगा कि इवेंजलिज्म वर्क, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर हम लोग सब मिलकर विश्वास करें और आगे बढ़े और सुसमाचार प्रचार करें, वर्क ऑफ इवेंजलिज्म कंटिन्यू, बिलीविंग दैट देयर इज नथिंग टू हार्ड फॉर गॉड, and we do the evangelistic work, many souls will be saved, but it is up to you and I to do that. So जबकि हम लोग इस जगह पर आए हैं, प्रार्थना के समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, साल के पहला हफ्ता प्रार्थना में बिताते हैं, स्पिरिचुअल एम्फेसिस हम कहते हैं। हमारे हृदय में ये जागृत हो जाना चाहिए कि हम लोग एक ऐसा परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं है। यहाँ पर नहीं आओ ये बैठ कर, अरे हमारे ऊपर इतना समस्या है, ये है, वो मुसीबत है और कुछ होता नहीं है, तकलीफ में हो, बहुत कुछ यहाँ पर आश्चर्यक्रम होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर हैं, जो विश्वासी लोग, इस कलीसिया के मेंबरान लोग हैं, हम लोग एक वायदा करें कि हम लोग पूरा दिल से एक दूसरे के साथ मिले, कोऑपरेट विथ वन अनदर, हार्टी कोऑपरेशन, प्रार्थना में लग जाए और एक ही मकसद होना चाहिए। ये अपने आप को हम प्रतिज्ञा करें कि हम एक साथ में मिलकर, हाथ में हाथ मिलाकर, हार्टी कोऑपरेशन, we'll spend time in prayer for one thing, and that is for evangelism. सबको मिलकर करना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए कोई चीज़ कठिन नहीं। हम लोग कभी कभी सोचता है, अरे एक पड़ोसी में अविश्वासी लोग हैं, कैसे लोग के हम लोग बताए, कभी नहीं लोग के जीत पाएगा। Forget it, होगा। It will happen, because with God nothing is impossible. Nothing is too hard. But आपके ऊपर और मेरे ऊपर है, believe। इसीलिए मैं इस हफ्ता का जो हमारा शिक्षा है, the teaching that I want to bring is that we believe. In the past, God has done some great things. All the doctrines we have looked at, and God has done great things. But the second most important thing that we have over there is that we should believe that God will do great things. The second aspect of faith is to catapult us. In other words, हम लोग के आगे और बढ़ा दे. As to the future, it's vital we know what we believe, but it is also vital that we know what we are believing God for. बहुत ज़रूरी कि हम लोग जाने क्या हम लोग विश्वास करते हैं। और ये कागज़ जो मैं दिया हूँ उसमें लिखा हुआ है जो हम लोग विश्वास करते हैं। बहुत ठीक है, बहुत ज़रूरत है उसको जानने के लिए। Every one of you should know that, learn it and understand that. But उसके साथ साथ हम लोगों को जानना चाहिए कि क्या हम लोग विश्वास करते हैं, क्यों हम लोग विश्वास कर, किस चीज़ के लिए हम लोग विश्वास करते हैं, क्या है हमारा खास मकसद। हमारा खास मकसद है जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। जानते हो परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हर एक मनुष्य बच जाए, that they might be saved. That's God's purpose, that every single soul might be saved. But you see, they cannot be saved unless you and I believe and take the gospel to them. That's why God has placed this church to do the evangelism work. हम लोग, आप और हम लोग परमेश्वर की कलीसिया है. We are the church of Christ. And God has given us that Holy Spirit. God has given us the opportunity and responsibility of evangelizing. And it will happen if we will believe and act. Believe and act. बैठे रहने से कुछ नहीं होगा. बहुत ही ज़रूरत है कि क्या हम लोग विश्वास करते हैं, किस चीज़ के लिए हम लोग विश्वास करते हैं. उसके साथ साथ वहाँ पर दो सवाल मैं रखा हूँ. What are you believing God for in your personal life? अपने व्यक्तिगत जीवन में
किस चीज के लिए तुम विश्वास करते हो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा? व्हाट इज इट? थिंक अबाउट इट. You just say, oh, I believe in God. I believe in God. Yes, right. Okay, you believe in God. But what is it? Why? What do you believe God will do for you in your personal life? कोई ऐसा चीज है जिसमें सुधार लाना चाहिए? कोई ऐसा आदत है जिसको तुम्हें छोड़ना चाहिए? कोई एक धंधा है या कोई संगति है जो तुम्हें पीछे खींच के ले जाते रहता है, उसको छोड़ना है? परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं है. नथिंग इज हार्ड. ही कैन डू इट. यू हैव टू बिलीव. यू हैव टू बिलीव. सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं, लेकिन यहां पर मैं लिखा हूं इन योर मिनिस्ट्री. जो काम तुम करते हो परमेश्वर के लिए, संडे स्कूल टीचर, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, पादरी लोग हैं, क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हारा जो मिनिस्ट्री है उसमें, चाहे जहां पर भी जो कुछ भी तुम करते हो, जस्ट अ हाउसवाइफ, यू डूइंग इट अनटू द लॉर्ड, क्या तुम्हारा विश्वास है तुम्हारा जो मिनिस्ट्री है उसके लिए? बहुत तरह तरह की मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं खाली पादरी बन जाओ. मिनिस्ट्री तरह तरह की मिनिस्ट्री है. कोई पादरी है, कोई चर्च के देखभाल करता है, सफाई करता है, कोई है संडे स्कूल टीचर्स है, कोई हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई और कुछ नहीं कर सकता है, लोगों को मदद करता है, ड्राइविंग करता है, ले जाता है, छोड़ता लाता है, ये सब. एवरीथिंग इज अ मिनिस्ट्री. सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज what am I believing for my ministry in future? क्या मेरा विश्वास है? Don't undermine your ability. अपना जो गुण है, अपना जो तुम सोचते हो करने के लिए, उसको तुम छोटा नहीं करो. बहुत लोग इधर है, हम कहाँ करेगा, हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम कोई चीज़ हम जनता नहीं है, शर्म लगे है, और इस कारण से हम लोग अपने आप के sort of नीचे रखे हैं. कभी बाहर नहीं निकलते कुछ करने के लिए. अब बताओ करने का, हम कहाँ करेगा, हम नहीं सकता करे, हम तो कोई है ही नहीं, हम तो पढ़ा लिखा नहीं. God will use everyone. अपने अपने जगह पर वो तुम्हें काम में लाएगा. It's up to you to believe. परमेश्वर के सामने सब कोई भारी है, सब कोई उसके काम लायक है, उसके काम करेगा अगर हम अपने आप को उसके हाथों में देंगे. If we give ourselves, if we surrender ourselves in His hands, God will use you. You need to believe that. This is the whole thing. I'll keep repeating that. You need to believe. You need to believe that God can do great things through your life. We need to believe for the impossible things. शायद अभी तक कुछ ऐसा चीज़ है जो तुम सोचते हो कि ये कभी नहीं हो पाएगा. तुम सोचते हो कि शायद कोई पड़ोसी से तुम गवाह कभी नहीं दे पाओगे, नहीं जीत पाएगा, लोग कभी नहीं विश्वासी बनी. Don't have that negative thought. कोई व्यक्तिगत मांग है तुम्हारा और तुम सोचते हो इतना साल से हम प्रार्थना करता है, होते नहीं होगा, कभी नहीं होगा. और शायद हम लोग सोचते होंगे कि उसी समय चाहता था हम लोग के एक बच्चा हो जाने के लिए, लेकिन नहीं, ठहरे रहते. लेकिन इब्राहिम अपने विश्वास से टाटल मटल नहीं हुआ. He kept his eyes upon the Lord, and then the Lord fulfilled in His own time. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चर्च बिल्डिंग 2000 में प्लेन बन के तैयार हो गया और हम सोचते थे कब बनेगा. We were thinking about it, we were praying about it. We didn't have the money, but the money kept on coming. And there was a lot of criticism. बहुत लोग बहुत कुछ बात बोले. कुछ लोग बताया कि पादरी सब पैसा उड़ाए देते हुए तो चर्च नहीं बने. हाँ, ये भी बात बोला गया. शायद आप लोग नहीं जानते हो, फिर मैं बताता हूँ. लेकिन परमेश्वर के समय में सब कुछ होता है. But we kept on believing. I don't know about you, but I kept on believing. I'm still believing. God is going to do a miracle. The impossible thing. ये जो नहीं हो सकता है मनुष्य की आंखों में, वो होकर रहेगा.
And in July, we'll be dedicating and praising God and for this new building. I want you to believe that. Praise the Lord. So just remember this. Believe for the impossible. God says, is there anything too hard for me? Is there anything too hard? Think about it. Think about Sarah. And today I would say that pray that in the midst of the impossible circumstances, doubt will be replaced by absolute trust in God's promise to intervene in your need or circumstances. He will do it. But it's up to you, up to me to believe. And God will do it for us. All right? So remember that scripture in Genesis 18:14. Is anything too hard for the Lord? Nothing. Believe for the impossible. Yesterday we talked about believe for great things. And I said, believe for so greater things that you know you can't do it unless God is there. But you got to believe. You got to have that kind of vision. Today we are talking about believe for the impossible. The whole world might say, it's not going to happen. Keep your eyes upon Jesus. It will happen. If God has laid it upon you, if God has allowed it, if it's God's law, it's going to happen. And remember the story of Sarah and Abraham. Go home and read that. And you'll find that it will encourage you from Genesis chapter 18. Praise the Lord. So what we are doing today, this week, we are expressing our gratitude to God for His great blessing upon this church. All the great blessing in the past. We are grateful to Him for the result of this church, the things that has happened. And because of all of that, we commit ourselves and this church for greater evangelism. If anything I want to emphasize that for greatest evangelism that the world has ever seen. Greatest evangelism that this nation has ever seen. Greatest evangelistic work that this church has ever seen. That should be our goal. You might say, well, that's not possible. It is possible if we believe and do it. This will happen when we pledge ourselves for a hearty cooperation. In other words, हम लोग प्रतिज्ञा करें कि हाँ ये होगा और हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाकर प्रार्थना करें और विश्वास करें कि ये होगा. पैसा निकाले, खर्चा करे इवेंजलिस्टिक वर्क के लिए, समय निकाले इवेंजलिस्टिक वर्क के लिए, मिलजुल कर निकले बाहर इवेंजलिस्टिक वर्क, लोगों को सुसमाचार बताने के लिए. घर में बैठे बैठे नहीं होगा, एक जने से नहीं होगा. जब हम लोग सब मिलकर करेंगे तो वो चीज जो तुम सोचते हो कि नहीं हो सकता है वो होगा. Praise the Lord. Because evangelism is the heart of God. सुसमाचार प्रचार करना परमेश्वर के हृदय के बहुत नजदीक में है. इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्य जाति बच जाए. और वे लोग उसी समय बचेंगे जब हम लोग जाकर उनको बताएंगे सुसमाचार. All right, you say it's not possible. It is possible.